Hello and welcome to Vision of Asia, the news you can trust and events that move and celebrate our very own South Asian community. I'm Nidhi Kathuria coming to you from our ITV Gold studio in New Jersey. In the headlines today, new COVID guidelines for international passengers traveling to India. NYPD's hate crime unit probes attack on Sikh taxi driver. Indian Prime Minister inaugurated the 25th National Youth Festival. 14-year-old Aditya Chaudhary wins the Congressional App Challenge. From the world of entertainment, Bollywood actress Mukta Godse talks about her new movie Devil's Night, and Sex and the City actress Sarah Jessica Parker wears a lehenga and calls it a sari. Stay with us on Vision of Asia for news in detail right after this short break. A new set of rules for all international arrivals in India has come into effect. Foreign travelers will now have to undergo a mandatory quarantine for 7 days as per new rules. The 7-day home quarantine will end after an RT-PCR test that will be conducted on the 8th day. All international travelers who need to undertake testing on arrival have been directed to pre-book a self-paid COVID-19 test online on Air Suvidha portal. However, children under the age of 5 have been exempted from both pre- and post-arriving testing. On the revised guidelines, the centre has updated its new list of countries of concern. The countries included are South Africa, countries in Europe including the United Kingdom, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe, Tanzania, Brazil, Botswana, China, Ghana, Hong Kong, Israel, Kazakhstan, Kenya, Nigeria, Tunisia, Zambia, Congo, and Ethiopia. The New York Police Department NYPD Hate Crimes Unit has joined the investigation into the attack on a Sikh taxi driver at the city's main airport following a call for action by the Indian consulate here. The consulate tweeted, "The assault against a Sikh taxi driver in New York is deeply disturbing. We have taken up the matter with US authorities and urged them to investigate the violent incident." The State Department's South and Central Asian Affairs Bureau had tweeted that the US was deeply disturbed by the attack and added, "We all have a responsibility to hold perpetrators of hate crimes accountable for their actions, no matter where such crimes occur." The Sikh, who appears to be of late middle age with graying beard, withstood the attack stoically and did not retaliate. Let's take a look. Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 25th National Youth Festival on 12th January 2022 in Puducherry via video conferencing. The day, being the birth anniversary of Swami Vivekananda, is observed as National Youth Day. During the event, the Prime Minister unveiled selected essays on Mere Sapno Ka Bharat and unsung heroes of Indian freedom movement. These essays have been selected from submissions by over 100,000 youths on the two themes. Indian Prime Minister paid tribute to Swami Vivekananda and Sri Adi Shankaracharya.
India considers its youth as a demographic dividend as well as a development driver, PM Modi said in his remarks during the event. Let's take a look. साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्पे मनीषा, यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती तो ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है, श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने की अधीरता होती है, तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। मेरे सपनों का भारत, where the bell of happiness rings, where the birds in harmony sings। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इस अवसर पर देश भर के युवाओं ने कल के भारत के बारे में अपने विचार लिखे।
2047 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां, दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। देश भर के युवाओं ने अपनी कल्पना में पंख लगाए, अपनी कलम में नई ऊर्जा भरी और हमारे सामने रखी तस्वीर उनके सपनों के भारत की। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सक्षम देश हो। These environmental issues will be taken seriously towards the clean India, towards the better India. And people will be full of compassion, enthusiasm and bliss. It is 100% literacy rate in India. सभी गरीबी से मुक्त हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो। So the India I see in 2047 is technologically very advanced nation. I believe that we youth will change the future of our nation. I love my country and I'm very proud to be an Indian. मेरे सपनों का ये भारत कब मुझको मिल पाएगा? जब पहुंचूं दूर गगन में, देख मुझे मुस्कुराएगा। देश भर के लाखों युवा सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखकर ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिखे हर शब्द उनके संकल्प हैं, जिसे वो अपनी प्रतिभा और परिश्रम से सिद्ध करेंगे और करेंगे निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत का। 14-year-old Aditya Chaudhary from Manalapan, New Jersey doesn't just want to get to the bus on time. He wants to get to the bus just at the right time. That means no waiting in the rain, freezing cold, or under the blazing hot sun. To solve his everyday hurdle, he decided to build an app, which got him first place in the 2021 Congressional App Challenge for New Jersey's 4th Congressional District. This app is called Tracky and can be used by students, parents, and bus drivers to communicate the bus location with each other. You can make an account and create a bus route and then invite people to join that bus group. In a newspaper interview, Chaudhary said he was inspired by a WhatsApp group that his mom had, where everyone would share the bus's current location. With the help of the internet, he taught himself JavaScript, React Native, and Google Firebase. And with some guidance from his dad, who is a web developer, he started putting the app together step by step. Tracky is currently available on the App Store and Google Play. Mukta Godse has kick-started the shoot of her new movie Devil's Night, a thriller helmed by Ashok Jamwar, also starring Akash and Adi Irani. Over to the press conference. Clap. Shot 3, take 1. Act. अरे पूरा नहीं आएगा, कट करो यार, पूरा थोड़ी रहेंगे। ओके। इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और भी इतने मुश्किल समय में क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा स्टेप है आपकी तरफ से ये? मैं एस पटनवी फ्रॉम पटना, और इस फिल्म का निर्माण के लिए हमारे जितने भी कलीग थे उन लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि हम लोग फिर से एक फिल्म बनाते हैं साथ आपके। तो हमारे जो भी डायरेक्टर्स थे, राइटर थे, इन सबों की बातों पर मैं बोला। उन लोगों ने कहा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने इसीलिए इनिशिएट किया इसको प्रोडक्शन के लिए, और मैंने कहा कि एक नया काम है, इसको मैं शुरू करता हूँ। और उसके बाद फिर आज इस काम पर आए हैं, जो कल से इसकी शूटिंग हो रही है। ऐसे इस पर आज करीब 6 महीने से काम चल रहा था पहले से भी, जो कि राइटिंग में, डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में। तो ये सारे काम होते हुए कल 6 जनवरी से हम लोगों ने इसको 2022 से शुरू किया है शूटिंग, जो आज आप लोग आए हैं हमारे इस इंटरव्यू के लिए। मतलब महामारी में आप प्रोड्यूसर बन गए हो। देखिए, महामारी से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। दुनिया में महामारी आती हुई है और बहुत पहले से भी सुनता आया हूँ कि हर 100 साल पर ये महामारी आती है। तो ये तो एक भगवान का लीला है, ऊपर वाला ये सब दिखलाता है, जो हम लोगों के संभलने के लिए है। तो इसमें संभलना है, ये नहीं कि हम लोगों को पीछे हटना। पीछे हटूँ क्यों, और काम करना है, काम है।
इंडस्ट्री कभी मरती नहीं है दुनिया में। जो दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, ना इंडस्ट्री मरी है ना ये दुनिया मरती, और ये दुनिया चलती है, चलती रहेगी। इसीलिए सोचकर मैंने इस काम को किया। सो बेसिकली जब मैंने फ़िल्म की कहानी सुनी तो इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अशोक जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया फ़िल्म के बारे में। फ़िल्म थ्रिलर फिल्म है और फर्स्ट टाइम था जो मैं कोई थ्रिलर फिल्म करने जा रहा था, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना इसमें ताकि इस फिल्म को करूँ। टॉकिंग अबाउट योर को-स्टार मुग्धा गोडसे जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे कैसा है? मुग्धा के साथ काम करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जितने भी शॉट्स होते थे बहुत ईजिली ओके हो जाते थे और इट्स वेरी इजी कि साथ में हम लोग ईजिली शूट कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। अच्छा, ये फिल्म डेविल्स नाइट में आपको क्या अपील कर गया जब आपको कहानी बताई गई थी? क्या चीज़ें अपील कर गई? डेविल्स नाइट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा कि मुझे पहले तो एक आम लड़के का कैरेक्टर प्ले करना है, फिर उसके बाद मुझे फिल्म में वैम्पायर का रोल भी प्ले करना हुआ था। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरी आइज़ इस वक्त रेड दिख रही हैं, तो ये मुझे बहुत थोड़ा नया लगा कि मैं ऐसा अगर कुछ प्ले करता हूँ तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग रहे, कुछ मज़ा है। चाहूँगा कि काफ़ी सारे फिल्मों का हिस्सा रहे आप कई सालों से और इस तरह की फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन आज के दौर में जो हॉरर फिल्म बनती है, आपको लगता है कि वो मैच कर पाएंगे जो पहले ज़माने में बनती थी, जिस तरह का फिल्म तो पहले करते हैं? फ़र्क तो है सर, फ़र्क तो है। पहले ज़माने में जो बनती थी वो काफ़ी दिक्कतों के साथ में बनती थी, आज भी दिक्कतों के साथ में बन रही है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि रास्ते बहुत आसान हो गए हैं। पहले रास्ते क्रिएट किए जाते थे हॉरर दिखाने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें मेकअप से क्रिएट होती थी, लाइट से क्रिएट होती थी। आज की डेट में लाइट और मेकअप जो है वो बहुत ही इजीली हो जाता है, प्लस आपके पास सीजी वर्क जो होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसे कहते हैं, जिसे वीएफएक्स कहते हैं, तो वीएफएक्स और सीजी वर्क से काफ़ी सारी आसानी हो गई है। सिर्फ एक ग्रीन कर्टन रख दिया या फिर हमने ग्रीन फेस पहन लिया और उसके हिसाब से जो भी हमको बनाना है उस हिसाब से हम फेस बना करके आपको आपके सामने पेश करते हैं। निर्माता उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम की प्रोड्यूसिंग ऑफ फिल्म को? हाँ सर, मैं तो हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने निर्माता आना चाहें वो आएँ हमारी फिल्म लाइन में, लेकिन हिम्मत बना करके आए। लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के आते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई फिल्म लाइन है, इतने पैसे डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी हर बिज़नेस की तरह ही है, जैसे हर बिज़नेस में रिस्क होता है वैसे इस बिज़नेस में भी रिस्क है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बिज़नेस को जानें और बिज़नेस को जान करके किस तरह से किया जा रहा है उस तरह से बिज़नेस करना चाहिए। आप गलत चक्करों में पड़ोगे और आपके पैसे लुट जाएंगे तो फिर आप दोष फिल्म वालों पर डालोगे तो गलत बात है, मेरा तो ये मानना है। तो ये जो जॉनर है आपका हॉरर फिल्म, पहले एक्सप्लोर किया है कि पहली बार आप एक्सप्लोर कर रही हैं? जैसा आप लोगों ने देखा रहेगा, हेल्प करके पिक्चर की थी मैंने एक बहुत पहले, तो हॉरर फिल्म एक की है, बट ये एक हॉरर नहीं है, एक थ्रिलर है। वहाँ पे लाइक भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है, एक अलग स्टोरी है, थ्रिलर कह सकते हैं। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग और नए साल की शुरुआत एक नए प्रोजेक्ट से अच्छे काम से हो गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ये वर्क विद नेशनल अवार्ड विनर मधु भंडारकर जैसे डायरेक्टर से काम किया आपने, तो यहाँ पे नए प्रोड्यूसर से यू वर्क में प्रोजेक्ट क्या बेसिकली आपका क्राइटेरिया रहता है प्रोजेक्ट पे काम करने का? देखो, इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद ये तो पक्का है कि एक अपना किरदार हमें देखना है, स्क्रिप्ट देखनी है और देखो जो बनाने आते हैं पिक्चर वो तो सब अच्छे इंटेंशन से आते हैं। सो नए हो पुराने हो अवार्ड विनर्स हो, सबको अच्छी पिक्चर बनानी है। सो जब भी आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगे, आपका किरदार कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे, आई थिंक आई गो फॉर इट। दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। काम करते रहना है एंड क्राफ्ट हमारा बढ़ाते रहना है और लोगों को एंटरटेन करता रहना है, इतना ही हमारा काम है। आकाश जी का जानना चाहूँगा कि गोविंदा से क्या कहना चाहेंगे, कितना झलक मिला आपको गोविंदा जी का? आकाश इस रोल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। जैसे शाहरुख खान डर में थे और इसने पॉजिटिव भी काफ़ी अच्छा, अभी तो नैनीताल में मुझे शूट करना है तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसमें क्लीन सेव है। और जब निगेटिव में आता है तो इसके बियर्ड है, तो टाइम गैप है उसका, उसके बाद इसका बियर्ड है और उसमें ये डेविल कैरेक्टर में रहता है। आपको कैसी उम्मीद है डायरेक्टर के तौर पे, क्या समझते हैं कि कैसा रिस्पांस मिलेगा? देखिए, ये फिल्म मैंने 5 साल पहले लिखी है और तब से मैं डेविल के तलाश में था और आज मैं जब सीन शूट कर रहा हूँ तो एक एक सीन मुझे वही दिखाई दे रही है जो मैंने लिखी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ।
In a recent episode of the reboot of the cult classic Sex and the City, Kristen and Just Like That, actress Sarah Jessica Parker was seen sashaying a lehenga by Indian designers Falguni and Shane Peacock. The actress kind of had an oops moment in the episode revolving around the festival of Diwali, where she called the Indian attire a sari. Interestingly, the show plays the track Hamma Hamma by Oscar-winning music director A.R. Rahman as the actress steps out of her apartment building. And that's a wrap on Vision of Asia tonight. Send us your suggestions and community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events@itvgold.com. Follow us on our Facebook handle at ITVGold, subscribe to our YouTube channel, and pick up a free copy of Desi Talk if you're in the tri-state area or in the Chicago area for community news, entertainment, and events in US and India. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com or subscribe to the hot copy by calling 212-675-7515. Thank you and take care.